Hello, my dear friends. Today, the topic is about colligative properties. This is a very special topic as far as competitive examinations like NEET, JEE is concerned. What are colligative properties? These are actually the properties which depend only on the number of solute particles, or we can say concentration, which depend upon the number of solute particles or concentration, but independent on the nature of solute particles. So वो वाली properties जो depend करते हैं on number of solute particles, or we can say concentration, but they are independent on the nature of those solute particles. Such properties are called as colligative properties. Such properties are called as colligative properties. So those properties which depend only on the number of solute particles, or we can say concentration of solution, but they are independent on the nature of those particles, we call it colligative properties. Now, how many they are? We are having 4 colligative properties. Number 1 is relative lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure एक colligative property है. Second, elevation in boiling point, दूसरी colligative property है. Number 3rd is depression in freezing point, depression in freezing point, and number last one is osmotic pressure. These are the 4 colligative properties. We shall be talking about these one by one, but prior to that you must understand what are the conditions of a colligative property. What are the conditions of a property to be colligative? So conditions क्या है? कंडीशंस ये है कि सल्यूट जो है सल्यूट दैट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल. मतलब एक प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव होने के लिए कुछ कंडीशंस लाजमन ओबे करनी है. नंबर 1 इज सल्यूट जो है दैट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल. मतलब इट शुड नॉट इवेपोरेट, उसका प्रेशर नहीं आना चाहिए, सो इट शुड बी नॉन वोलाटाइल. कंडीशन नंबर 2 इज सोल्यूशन जो है सोल्यूशन जो बनेगा दैट शुड बी डाइल्यूट. सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट. डाइल्यूट मीन्स इट शुड बिहेव आइडियली, दैट इज शुड बिहेव आइडियली, बिकॉज डाइल्यूट सोल्यूशंस जो होते हैं, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशंस, दे आर बिहेविंग आइडियली. सो सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट. दूसरी कंडीशन ये है. तीसरी कंडीशन क्या है? सल्यूट जो है सल्यूट इट शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट. ना इसको एसोसिएशन होनी चाहिए, ना इसको डिसोसिएशन होनी चाहिए while dissolving in solvent. Solute should be non-volatile, solution should be dilute, and solute should not associate or dissociate in solution. Number last condition is अपॉन फ्रीजिंग. अगर आप फ्रीज करोगे, अपॉन फ्रीजिंग अगर आप सॉल्यूशन को फ्रीज करोगे, ओनली सॉल्वेंट शुड फ्रीज. सॉल्वेंट शुड फ्रीज. ओनली सॉल्वेंट शुड फ्रीज. खाली सॉल्वेंट फ्रीज होना चाहिए. मतलब ये कि आपका जो सोल्यूट उसमें है दैट शुड गेट ट्रैप्ड. वो ट्रैप होना चाहिए, वो सॉलिडिफाई फ्रीज नहीं होना चाहिए. ओनली द सॉल्वेंट should freeze while you freezing the solution. सॉल्वेंट को क्या होगा? जब सॉल्वेंट फ्रीज होगा तो सोल्यूट जो है that will be trapped by the solvent that time. So only solvent should freeze, not the solute. Solute should only
get trapped while freezing solvent. तो जब आप सोल्यूशन को फ्रीज करोगे तो उसमें खाली सॉल्वेंट फ्रीज होना चाहिए, सोल्यूट फ्रीज नहीं होना चाहिए। ये चौथी कंडीशन है। These are the 4 conditions for a property to be colligative. Number 1 condition is solute must be non-volatile, solution must be dilute, मतलब it should behave ideally, and solute जो है that should not undergo association or dissociation in solution, and upon freezing जब आप solution को freeze करोगे तो खाली solvent freeze होना चाहिए, solute freeze नहीं होना चाहिए। जब ये conditions fulfill होंगी तब वो प्रॉपर्टी जो है आपकी कोलिगेटिव बनेगी। जब वो कोलिगेटिव बनेगी मतलब ये कि वो डिपेंड करेगी ओनली ऑन कंसंट्रेशन और वी कैन से नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दोज सोल्यूट पार्टिकल्स। नाउ वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दीज वन बाय वन। सो पहला प्रॉपर्टी हम लेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि जो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस व्हाइल डिस्कसिंग राउल्ट्स लॉ। वही हम यहां पे फिर से करेंगे। विल रिपीट इट हियर। आपके पास एक कंटेनर है, इसमें खाली आपका सोल्यूशन है, इट्स हैविंग अ सॉल्वेंट ओनली, सपोज वाटर है इसमें सॉल्वेंट। वी एक्सप्रेस सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ ए। सो इसका वेपर प्रेशर जो है, कुछ वेपर्स बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा PA0। ठीक, इट्स अ प्योर कंपोनेंट। अब जब इसमें आपने डाल दिया है सोल्यूट टू, एंड दिस सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। जब इसमें आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया तो सोल्यूट जो है सोल्यूशन बनाएगा, फिर इट विल बी अ सोल्यूशन। नाउ जब ये सोल्यूशन बनेगा तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट। वंस इट ऑक्यूपाइज सम सरफेस हियर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इवेपोरेशन इज बेसिकली सरफेस फिनोमेना। सपोज सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल्स थे तो 10 मॉलिक्यूल्स escape हो गए into vapor state, so pressure is because of 10 vapors, so that's given by PA0। अब जब आपने इसमें डाल दिया non volatile solute, it gets uniformly distributed throughout the solvent, so it is available at surface also, so it occupies some surface, so there is less surface available for solvent molecules। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल पहले थे सॉल्वेंट के, अब 6 मॉलिक्यूल है आपके पास सपोज सॉल्वेंट, तो 4 मॉलिक्यूल जो है वो सोलिड पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर दी। नाउ द वेपर्स विल बी ओनली बिकॉज ऑफ 6 बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच आर 6 ओनली, सो 6 वेपर्स यहाँ पे बनेंगे, तो प्रेशर इज बिकॉज ऑफ 6 ओनली। इसका मतलब ये हुआ प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेसर देन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने जा रहे हैं टू ए सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो दैट्स कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो लोअरिंग क्यों होता है? बिकॉज वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है इट ऑक्यूपाइज सम सरफेस, हेंस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल बी लेसर, हेंस वेपर्स कम बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। सो सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर व्हेन यू ऐड अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, whose link has been placed in the description, we have partial vapor pressure of A component, मतलब solvent is proportional to mole fraction of A component, and partial vapor pressure of B component, मतलब आपका solute, यहाँ B से denote करेंगे, it is proportional to mole fraction of B। अब PA will be equal to PA0 into XA, PA0 is the mole fraction of pure component, PB will be equal to PB0 into XB, this will be equal to 0 because solute जो है that is non-volatile। जब solute non-volatile है तो solute का जो pressure है वो that will be 0। तो where PA is basically partial vapor, not partial vapor pressure, it is the vapor pressure, vapor pressure of solvent, pure solvent, ठीक, and PA is the partial vapor pressure of that solvent when in the solution phase, ठीक। XA is the mole fraction of that,
solvent in liquid phase. This is called as Raoult's law. अब total pressure कौन देगा आपको? Total pressure is given by Dalton's law. So total pressure मतलब solution का pressure that will be equal to pressure of A component plus pressure of B component, implies solution pressure will be equal to PA naught into XA plus 0, implies solution pressure will be equal to PA naught into XA. यहाँ पे divide करेंगे हम, solution pressure by will be equal to XA, but XA is equal to 1 minus XB, because XA plus XB, total mole fractions of all components is basically unity. So XA is equal to 1 minus XB. तो हम यहाँ पे we can change it, XB हम is equal to से यहाँ डालेंगे तो it will be positive here, तो ये यहाँ डालेंगे तो minus here, so XB will be equal to 1 minus PS by PA naught. This implies PA naught minus PS divided by PA naught will be equal to XB. This expression is basically for relative lowering of vapor pressure. जो यहाँ पे ये वाली term है, this is called as RLVP. RLVP means relative lowering of vapor pressure. और ये जो ऊपर वाली term है मतलब PA naught minus PS, this is called lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. PA naught minus PS is basically lowering of vapor pressure, and PA naught minus PS by PA naught, this is called the relative lowering of vapor pressure, and this is the mole fraction of solute. Mole fraction of solute. So relative lowering of vapor pressure जो है वो equal आया है to the mole fraction of solute. मतलब it depends on mole fraction, which is a concentration term. So RLVP जो है it's a colligative property, because colligative properties वो properties हुआ करती है जो डिपेंड करेगी concentration पे या number of particles पे. So it depends on concentration, that is mole fraction. So it's a colligative property. पूरा जो है PA naught minus PS by PA naught, this is called relative lowering of vapor pressure, and this part जो है PA naught minus PS, this is called lowering of vapor pressure, and PS is the solution vapor pressure of solution. XB is the mole fraction of that solute, because B we have represented as solute, A we have represented as solvent. This is the main expression. अब हमारे पास मसला ये है कि we have basically assumed, क्योंकि हमने already discuss करा है, we have assumed the conditions to be solute should be non-volatile, solution should be dilute, and solute should not undergo any association or dissociation while dissolving in solvent. अब अगर ये condition relax हो गई, मतलब solute is basically undergoing dissociation or association, तब जो आपकी expression है वो valid नहीं रहेगी. मतलब ये कि this equation will not be valid if solute undergoes association or dissociation. Let us suppose now if आपका जो solute है that undergoes dissociation or association, तब क्या होगा? Then the equation, then the above expression is modified as, ये जो expression है this will not be valid, then फिर इसको क्या किया गया, इसको modify किया गया, that is PA naught will be equal to PA naught minus PS divided by PA naught, that will be equal to I times XB. So introduce किया गया I, and this I is basically called as, this I is called as Vant Hoffs factor. ये हमने already discuss करा है. The link has been placed in description. आप वो देख सकते हैं Vant Hoffs factor. Because Vant Hoffs factor जो है it gives the measure of dissociation or association of solute. It gives the measure of dissociation or association of solute. That's called Vant Hoffs factor. So Vant Hoffs factor I introduce हुआ to take care of when the solute undergoes dissociation or association. So ये वाली expression जो है this is valid for all types of electrolytes, all types of, we can say, solutes, whether it's electrolyte मतलब giving dissociates into ions, or some substances which form dimers ताकि association हो जाए, or for non-electrolytes also whose I is equal to 1. So for non-electrolytes
फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स I जो होता है दैट्स इक्वल टू 1, मतलब ग्लूकोज आपके पास है, सपोज यूरिया है आपके पास, ग्लूकोज है आपके पास, सक्रोज है आपके पास, ये वाले जो सब्सटेंसेस है दे आर बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दे नीदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट, सो उनका I वैल्यू हमेशा 1 होता है। जब इनका I वैल्यू 1 है तो इट ड्रॉप्स डाउन टू द सेम एक्सप्रेशन दैट इज दिस। लेकिन अब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग वाले आई एम टॉकिंग अबाउट, स्ट्रॉन्ग वाले, तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स, कितने आयन्स वो इलेक्ट्रोलाइट देगा अगर स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोवाइडर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कितने नंबर ऑफ आयन्स वो देगा, दैट इज गिवन बाय I, दैट गिव्स द I वैल्यू। अब वीक के लिए क्या है, फॉर वीक, यहां पे लिखेंगे हम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट I is basically obtained from alpha. Alpha किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ Ka by C. C is the initial concentration and Ka is basically dissociation constant of that acid or base. So alpha अगर आपको पता होगा you can then find I. ये सारा कुछ जो है I के रिलेटेड कैसे I आपको निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है in that video that's about Vant Hoffs factor whose link has been placed in the description. आप वो वीडियो देख सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर का एंड यू कैन इजीली गेट टू नो दिस एक्सप्रेशन। सो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इट डिपेंड्स ऑन I, इट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द मॉडिफाइड एक्सप्रेशन अगर सॉल्यूट जो है वो अंडरगो करेगा डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे। व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस आस्क्ड with regard to relative lowering of vapor pressure? The questions can be, so we'll now take numericals. The questions can be, questions कैसे आ सकते हैं, numerical based, numericals में क्या क्या आएगा, numericals में आपको आएगा find RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालिए आप, मतलब ये निकालिए आप, so उसके लिए आपको I और X भी पता होना चाहिए। दूसरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालिए आप, मतलब ये कि आपको ऊपर वाला हिस्सा निकालना है PA0 माइनस PS, तो PA0 विल बी गिवन, XB विल बी गिवन, I विल बी गिवन। थर्ड आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, मतलब ये कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मतलब सॉल्वेंट वेपर प्रेशर दिया हुआ होगा, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज विल बी गिवन, you will be asked to find mole fraction of solution, this vapor pressure of solution. Third kind of property will be find I, आपको I बोला जाएगा निकालने के लिए, उसके लिए आपको बाकी क्वांटिटीज जो है पता होनी चाहिए, वो दी हुई होंगी, या आपको बोला जाएगा find weight of solute, आप निकालिए weight of solute, वो भी निकलेगा from mole fractions. Once you get the mole fraction you will easily get the weight of solute. ये सारे जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स है, या आपको बोला जाएगा फाइंड कंसंट्रेशन डायरेक्टली, तो आप क्या निकालेंगे, आप मोल फ्रैक्शन निकालिए। अगर आपको बोला जाता है कि आप निकालिए कंसंट्रेशन इन मोलैलिटी, तो आप क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर इसी मोल फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे मोलैलिटी में। ठीक, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हुए। और नंबर सेकंड कैटेगरी इज बेसिकली कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप, मतलब अगर आपका कैसे आएंगे वो, आपके पास इक्वेशन क्या है, PA0 माइनस PS बाई PA0 इज इक्वल टू I टाइम्स XB, दिस इज द एक्सप्रेशन। ना यहां देखिए आप, जितना इस एक्सप्रेशन से क्या निकलेगा, आपको जितना I आप इंक्रीज करेंगे उतना आपका ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जितना RLVP ज्यादा होगा उसका मतलब ये हुआ कि आपका PA0 माइनस PS भी ज्यादा होगा, मतलब लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। दिस इंप्लाइज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो जितना I इंक्रीज करेंगे आप उतना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, बिकॉज दिस विल बी हैविंग हाई वैल्यू, दैट इज लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब इसका वैल्यू ज्यादा होगा तब इसका वैल्यू जो है वो बहुत कम होगा। सो जितना आप I इंक्रीज करेंगे उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। सेम इज ट्रू विद XB, जितना मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते जाएंगे उतना RLVP भी इंक्रीज होगा, मतलब रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा।
लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम होगा अगर आप मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे. सो दीज विल बी द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आस्क्ड and these are some of the numerical questions which can be asked. So we'll take some questions to illustrate this. So question number 1 हम लेंगे यहाँ. Question number 1 is, suppose आपके पास है find RLVP, relative lowering of vapor pressure, if 2 moles of urea are present in 10 moles of water. आपको दिया हुआ है PA0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 atm. ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे ये? आपको पता है PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0 इज कॉल्ड RLVP. दिस इज इक्वल टू I टाइम्स XB. दिस इज इक्वल टू urea is non-electrolyte, so I is equal to 1, so 1 multiplied by mole fraction of solute is equal to moles of solute, that is 2. Total moles is 12. That is 1 by 6. So 1 by 6 is the answer. This is the relative lowering of vapor pressure. A very simple question. Question number 2 हम लेंगे. We'll take question number 2. Find lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure if 10 moles of glucose are present in 20 moles of water, given that pressure of pure water is equal to 1 atmosphere. So आपके लिए एक्सप्रेशन क्या है? PA0 minus PS divided by PA0 is equal to I times XB. That will be equal to I कितना है? Glucose is basically non-electrolyte. I equal to 1. 1 multiply mole fraction of solute is moles of solute मतलब 10 divided by total moles 20 plus 10 is 30. That is equal to 1 by 3. So 1 by 3 आपको निकला है क्या? Relative lowering. But what is lowering? आपको lowering निकालना है. So lowering is PA0 minus PS. That's called lowering. That will be 1 by 3 into PA0. ये multiply यहाँ हो जाएगा. So this is 1 by 3 into. अब दिया कितना है water का? A solvent क्या है? Water. उसका कितना दिया? 1 atmosphere into 1. That will be 1 by 3. This will be the answer. So this will be the lowering of vapor pressure. Question number 3 हम लेंगे. Find vapor pressure of solution. आपको solution का vapor pressure निकालना है. If 10 grams of sodium chloride are dissolved in 54 grams of water, given that pressure of water is equal to 1 atm. तो कैसे करेंगे आप? आपको पता है PA0 minus PS divided by PA0 is equal to I times XP. आपको PS निकालना है इस वक्त बिकॉज दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. आपको यही निकालना है. तो PA0 इज गिवन कितना? A इज सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट हियर 1 है, वाटर है तो इसका वेपर प्रेशर 1 है. सो 1 minus PS by 1. This implies 1 minus PS by 1 will be equal to I times. I is the Vant-Hoffs factor for sodium chloride. Sodium chloride एक strong electrolyte है. जब एक strong electrolyte होता है तो I जो है वो बराबर होता है कितने आयन्स ये देता है? Number of ions. It gives 2 ions. एक तो सोडियम दूसरा क्लोराइड. So I is equal to 2. So 2 multiplied by mole fraction of what? Mole fraction of solute. So mole fraction of solute बराबर होता है moles of solute divided by total moles. Moles of B plus moles of A. So this implies 1 minus PS. That's 1 minus PS will be equal to 2 into moles of solute will be equal to weight by molecular weight. आपको weight दिया हुआ है मतलब 10 divided by 60. Not 60, it's basically sodium का है 23, chloride का है 35.5, that is 58.5. It is not 60, it's 58.5. यहाँ हम इसको रब करेंगे. It is equal to 2 into इसके बदले that is 10 divided by 58.5 whole divided by
10 डिवाइड बाई 58.5 प्लस सॉल्वेंट का कितना है, इसका वेट है 54, मतलब 54 डिवाइड बाई 18 बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे आपको पीएस निकलेगा, तो ये आप पीएस यहाँ डालेंगे और ये सारा क्वांटिटी जो है यहाँ आएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पीएस। इस तरीके से जो है आप वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यू कैन ईजिली गेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलल सोडियम कार्बोनेट। ये एक्वस सोल्यूशन है, इसका एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में बनाया है। गिवन दैट PH2O नॉट जो है दैट्स 1 atm। सो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ये दिया हुआ है। आपको वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकालना है, आपको मोलैलिटी दी हुई है रादर देन मोल फ्रैक्शन। सो इंपॉर्टेंट इज आपको मोल फ्रैक्शन पहले निकालना है, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है, PA नॉट माइनस PS डिवाइड बाई PA नॉट दैट्स इक्वल टू I टाइम्स X टाइम्स B। दिस इज द एक्सप्रेशन। सो ये चीज आपको निकालना है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये कितना है, ये दिया हुआ है 1, सो 1 माइनस PS बाई 1 होगा यहाँ। दिस इक्वल टू 1 माइनस PS डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू I टाइम्स XB। मतलब ये कि आपको PS निकालने के लिए XB चाहिए। I will be the, this is a strong electrolyte। strong electrolyte के लिए I इक्वल टू होता है number of ions, it gives 2 sodium ions and 1 carbonate that is 3। so I is equal to 3, I का वैल्यू पता है। XB आपको चाहिए to get what, to get the vapor pressure of solution। so XB कैसे निकालेंगे आप, from mole fraction। देखिए आपको मोलैलिटी दी हुई है, that is molality is equal to 0.1 molal, which means this implies 0.1 mole is present in 1 kilogram of water solvent। solvent water है, तो इसका मतलब ये हुआ कि moles of B, moles of solute is equal to 0.1, निकला एक। अब moles of इसको निकालने हैं, so moles of A will be equal to, solvent क्या है, moles will be weight by molecular weight, weight कितना है 1 kg, मतलब 1000 divided by 18 that is equal to 55.5। this will be the moles of A solvent, this will be moles of B। तो मोल फ्रैक्शन इजीली निकलेगा अब आपको, तो 1 minus PS will be equal to 3 into this is 0.1 divided by 0.1 plus 55.5, this is 0.1 divided by 55.6 multiply 3 है यहाँ into 3, तो ये यहाँ डालिए, ये यहाँ डालिए, तो PS will be equal to 1 minus 0.3 divided by 55.6। ये जब आप सॉल्व करेंगे you will get the answer in atmospheres, you will get the answer in atmospheres। 55.6 मल्टीप्लाई करिए यहाँ, फिर माइनस करिए 0.3 डिवाइड बाई करिए 55.6, ये जो आपका आंसर निकलेगा दिस विल बी इन एटमॉस्फेयर्स बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज गिवन इन एटमॉस्फेयर्स। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सो आपने कन्वर्ट करा मोलैलिटी इनटू मोल फ्रैक्शन। सो मोलैलिटी कैसे आपने कन्वर्ट करा, because molality is given 0.1 molal, which means 0.1 mole is present in 1 kg of solvent। solvent here is water। तो आपका मोल निकला, मोल नंबर ऑफ मोल्स निकले सोल्यूट के, आपके जो है मास ऑफ सॉल्वेंट निकला। जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकला तो मोल्स भी निकलेंगे, बिकॉज मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इज 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 18, so 55.5 is the moles of A। you are getting the mole fraction easily, put the value here, you can get the answer। this is how you can solve such problems। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, so we have question number 5। फाइंड I। आपको बोला जाता है आप वांट हॉफ्स फैक्टर निकालिए ऑफ अ सोल्यूट के लिए if 10 moles of it are present in 20 moles of solvent to develop vapor pressure of solution as 0.7 atmosphere। PA नॉट मतलब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर प्योर है दैट इज गिवन एज 1 atm। सो आपको क्या निकालना है, आपको I निकालना है। सो वी नो
PA0 minus PS डिवाइड बाई PA0 इज इक्वल टू I टाइम्स XB। ठीक, अब आपको I निकालना है। PA0 इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेयर, सोल्यूशन वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है कितना 0.7, तो मोल फ्रैक्शन, मोल्स आर गिवन, सो मोल फ्रैक्शन इज गिवन, सो एवरीथिंग इज गिवन, यू कैन इजीली फाइंड। देखिए इसके बाद हम लिखेंगे 1, सो 1 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 10 डिवाइड बाई टोटल मोल्स दैट इज 30। ठीक, ये बनेगा आपको 0.3, दिस विल बी इक्वल टू I इंटू 1/3, 0 0 कैंसिल, 1/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज I will be equal to 0.9. So this is how you can find the value of I. Very, very simple. These were some of the numerical based problems. Now we shall be talking about conceptual problems. So question number 6 हम लेंगे, which among the following possess high vapor pressure? किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए इज 0.1 मोलल सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी 0.1 मोलल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी 0.1 मोलल सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी 0.1 मोलल यूरिया। अब देखिए, वी नो दैट PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0 बराबर होता है I टाइम्स XP। देन आई टोल्ड यू, I जितना ज्यादा होगा उतना सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है PS वो कम होगा। सो सोल्यूशन वेपर प्रेशर विल बी वेरी वेरी लेसर इफ I इज हायर। इसका मतलब ये हुआ अगर I कम होगा तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जिसका I वैल्यू कम है। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म है। सो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के बदले मोलैलिटी दिया हुआ है। सो मोलैलिटी जब सेम है, जब कंसंट्रेशन सेम है, मतलब मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा। जब मोल फ्रैक्शन सेम है तो अब I डिसाइड करेगा वेपर प्रेशर किसका? सोल्यूशन का। जिसका I वैल्यू कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अब I वैल्यू किसका कम होगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से तीनों, I इज इक्वल नंबर ऑफ आयंस, ये 2 सोडियम देगा, 1 कार्बन देगा, मतलब I इज इक्वल टू 3, I is equal to 2 because it gives only 2 ions, one is sodium, next is hydroxide. It gives only 2 ions, एक sodium है, दूसरा chloride है। Urea is non-electrolyte, so it gives only, its I is equal to 1 for non-electrolytes. अब I किसका सबसे कम है? It's for urea, तो vapor pressure will be very higher. This will be the answer. This will be the answer. दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे conceptual based ही, which possesses high vapor pressure? किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? ऑप्शन ए इज 0.1 मोलल सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी 0.2 मोलल सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी 0.2 मोलल, नॉट 0.2, सॉरी 0.2 तो लिखा, 0.01 मोलल सोडियम क्लोराइड, डी 0.3 मोलल सोडियम क्लोराइड। अब मसला क्या है? मसला यह है कि इस वक्त मोलैलिटी डिफरेंट है, लेकिन I का वैल्यू सबका सेम है, क्योंकि बिकॉज इट गिव्स 2 आयंस, इट आल्सो गिव्स 2 आयंस, ऑल गिव 2 आयंस, सो इट इज द कंसंट्रेशन व्हिच डिसाइड्स द व्हाट? वेपर प्रेशर। अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है PA0 माइनस PS बाई PA0 दैट्स इक्वल टू I टाइम्स XP। अब ये तो सेम है, तो जितना XB आपको कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना आपका सोल्यूशन वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक, इसका मतलब जितना आपका मोल फ्रैक्शन कम होगा उतना उसका जो है सोल्यूशन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सो मोल फ्रैक्शन किसका अब कम है? हमेशा याद रखना चाहिए कि ये एक्वा सोल्यूशन में हम बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन जितना मोलैलिटी ज्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना मोलैलिटी ज्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ, तो अब मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है? मोलैलिटी किसकी ज्यादा है? जितना मोल फ्रैक्शन, जितनी मोलैलिटी ज्यादा होगी उतना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना मोलैलिटी कम होगी उतना मोल फ्रैक्शन भी कम होगा। तो मोल फ्रैक्शन जो है, तो मोलैलिटी जो है वो कम इसकी है, इसका मोल फ्रैक्शन भी कम होगा। जब मोल फ्रैक्शन कम है
तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। सो दिस विल बी द आंसर। आप ये निकाल भी सकते हैं। देखिए 0.1 मोलर मीन्स 0.1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो इसका मोल फ्रैक्शन निकलेगा आपको NaCl का हियर, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 55.5। ये फिर आएगा बराबर आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.0018। ठीक, ये इसका पहला वाले का। अब इसका देखिए, दूसरे वाले का देखिए, इसका जो x है दैट विल बी इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 0.2 प्लस 55.5, दैट इज इक्वल टू 0.0035। इसका आप देखिए तीसरे वाले का, इट इज x विल बी इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाई 0.01 plus 55.5, that will be equal to 0.00018। इसका देखिए आप, इसका निकलेगा x 0.3 डिवाइड बाई 0.3 प्लस 55.5, that is equal to 0.0053। अब देखिए इसका मोलैलिटी सबसे ज़्यादा है, सो मोल फ्रैक्शन इज 0.0053 सबसे ज़्यादा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन किसका ज़्यादा है, दूसरे वाले का। सो मोलैलिटी इज मोर, सो मोलैलिटी इज 0.0035। इसके बाद इसकी मोलैलिटी है, सो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.0018। सबसे कम मोलैलिटी वाला ये है, इसका सबसे कम मोल फ्रैक्शन है 0.0018। जब मोल फ्रैक्शन सबसे कम है मतलब ये कि उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सो दिस इज द आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं निकाल के। So this is how you can solve the conceptual as well as the numerical based problems with regard to relative lowering of vapor pressure. I hope you understand it. And please, dear students, if you like my videos, do not hesitate to share and subscribe my channel. Do subscribe, do like, and maro comment.